Okay. Please, I hereby inaugurate this portal. Thank you, sir. Can you just take us through the portal? I now request our guest of honor, Shri C. Kunso, to kindly address the gathering. Spontaneous. And I miss the spontaneous. I have to compose my sentences in my mind before I speak out. And then, you miss something in that. So the importance of language. Now, this is about all I wanted to say. What is the future of Ladakh and what are the subjects that you choose for your own career? Particularly when everybody does intend to come back to Ladakh, they must choose what is of relevance to Ladakh. Of course, it doesn't preclude. It does not preclude students from choosing whatever subject they like. After all, some of our students may feel that maybe English literature is a very good subject and they have an interest. The country and the world offers scope for every subject. I may mention on a personal note that I always used to tell my own children that what is important is not what subject you choose. What is important is whether I am interested in that subject, whether, and more important, whether I can become a world-class professional. Captain Kritika. I'm posted here in Komasan and I'm here in front of you to tell you what all avenues you have in the defense courses. So let's begin the presentation with a little bit of fun. This is going to be an interactive session. You can stop me anytime. आपको अगर कोई डाउट है आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं. Otherwise पीछे हमारे साथ साहब दो आए हैं, संजय साहब और घोष साहब. तो जब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, अगर आपका कोई डाउट बचता है, साहब लोग आपकी हेल्प करेंगे. Is that okay? Yes, ma'am. Let's go to the next. So when you think of the army, what do you see in mind? क्या सोचते हैं आप लोग? Protection. और कोई? Army can be a lot of things. Protection for the country, but also a lot of fun for you. Let's go ahead and see how. We are generally known for battle, and when we go into battle, we go in with resolve, but also with commitment. And the training that we do, it makes it such a second nature in your life that it doesn't seem like you're doing something different. जो आप कर रहे होते हैं, वो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं. और that is the power of Indian Army. So the aim of this presentation is to acquaint the youth with career prospects in the Indian Army. Let's go next. So I'll be covering this presentation under the following heads: the role of the Indian Army, the life, the entry schemes through which you can join, the emoluments or pay package, and finally I'll talk about the Agnipath scheme. Have you heard about the Agnipath scheme? चलिए ठीक है, we'll talk about this. Okay, जब आप सोचते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा और वो सेटिस्फाइंग होगा, तो आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए किसी प्रोफेशन में जिससे आपको रात को नींद अच्छी आए? Anybody? पीछे से कोई? Yes, कोई भी गेस कीजिए. बहुत सारी चीज हो सकती है. हाँ जी, लड़कों में से कोई भी नहीं? ठीक है, मैं अपनी तरफ से दिखाती हूँ. मेरे लिए इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जॉब सेटिस्फैक्शन. जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं. प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको आगे सीखने को मिल रहा है कि नहीं. जॉब सिक्योरिटी, क्या आपके पास 3 साल 4 साल के बाद पैसा होगा, क्या आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाएंगे. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगेन ये अगर आपके पास रहेगा तो आप आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं. सोशल स्टेटस, अगर आपका स्टेटस अच्छा है, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप लोग बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या आपके एक दिन की कीमत लोगों के 10 दिन के बराबर है या उससे भी ज्यादा? दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. वैरायटी एंड एडवेंचर, दैट्स द लास्ट एंड प्रोबेबली माय फेवरेट पॉइंट, क्योंकि दिस इज वन पॉइंट जिससे आप कहीं पे भी जा सकते हैं.
हमारी इंडियन आर्मी में आपको एडवेंचर का बहुत मौका मिलता है। धीरे धीरे मैं आगे दिखाऊंगी आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहाँ से आती हूँ और मैं कहाँ सर्व कर रही हूँ। अब आपके बीच में लद्दाख में सर्व करने का मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि फौज मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी। द प्राइमरी रोल ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू प्रिजर्व आवर नेशनल इंटरेस्ट। मतलब हमारी इंडियन आर्मी के, हमारी पूरे देश का जो इंटरेस्ट है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। हमारी बॉर्डर्स को सेफगार्ड करना, हमारी टेरिटरी को सेफगार्ड करना और हमारी कंट्री को यूनाइटेड रखना, एकजुट की तरह सोचना, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से हमें बचाना। दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड वी ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी रोल। दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल थ्रेट्स। जो हमारे नेशन के अंदर अगर कभी इंटरनल वेड होती है, भेदभाव होता है, उनको कम से कम करना, प्रॉक्सी वॉर्स को रिड्यूस करना एंड गवर्नमेंट को असिस्ट करना सिविल एड में। So these are our secondary roles. Let's go to the next. This is the life in the army and I'll show you a glimpse of these. The first thing about the Indian Army is that it is adventurous. आप active operations में participate कर सकते हैं। आप counter terrorism को के against भी लड़ सकते हैं। You can get posted to special operation places. You can provide disaster relief to people serving or living in a state or a location. You are also eligible to go to UN peacekeeping. किसी को पता है UN peacekeeping क्या है? Okay, UN is United Nations. United Nations एक सेंट्रल बॉडी है जो 1945 में बनी थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 और इसके बनने के बाद बहुत जगह पे हर देश की आर्मी सर्व करती है ताकि बाकी जगहों पे अनरेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल UN peacekeeping कॉन्गो में होती है, इंडिया से इथियोपिया में होती है, लेबनान में होती है, सीरिया में होती है। तो आपको इन जगहों पे जाकर सर्व करने का मौका भी मिल सकता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, दिस डजंट स्टॉप राइट आफ्टर योर कमिशनिंग। जैसे ही आप फौज में आते हैं आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी स्किल्स को एनहांस करते हैं, सच एज करियर कोर्सेज एंड क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, मैनेजमेंट, लैंग्वेजेस। आप फॉरेन कंट्रीज में जाके कोर्सेज भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है स्टडी लीव, जिसमें आप 2 साल की छुट्टी लेके अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और फिर वापस से रिज्वाइन कर सकते हैं। ट्रैवल, अगेन एज आई सेड, there are several opportunities to travel around the world extensively and you can visit places that nobody else goes to. कोई भी नहीं सोच सकता कि कोई बंदा नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से आकर यहाँ सर्व करेगा कारगिल में, बट हम लोग इतने लकी हैं कि आर्मी के साथ हम वहाँ जा सकते हैं। The places an army person can visit are the entire country. There are also overseas or peacekeeping missions or UN missions. You can also get posted to embassies. के बच्चे रिलेशनशिप में हैं तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कहीं न कहीं सोसाइटी का एक रोल है उसमें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल है, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ये केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी मेरे साथ या आपके रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मेरी यही गुजारिश होगी कि ये मैसेज जो पेरेंटिंग का वाला जो है, आप हमेशा पेरेंटिंग पे टॉपिक रखें, या आपके मोहल्ले में जिनमें पेरेंट्स हैं या आपके सोसाइटी में जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं आपके, उनको भी पेरेंटिंग पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये इशू, पेरेंटिंग वाला इशू उठाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज यहाँ पेरेंट्स होते तो मुझे लगा था, क्योंकि मुझे लगा पेरेंट्स है तभी मैंने पेरेंटिंग वाला भी इशू, मुझे लगा कि अभी एक क्रूशियल इशू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करने की चीज है, जरूरत है हमें इस चीज पे भी डिस्कस करने की। इसी वजह से मैंने सोचा था मैं पेरेंटिंग पे भी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं पेरेंटिंग पे भी करूँ। पेरेंटिंग में और ये कहता है किड्स बीइंग ए गुड। आप हमें ये देख लीजिए कि आपने कितनी दफा अपने बच्चे को नेगेटिवली आपने क्रिटिसाइज किया है। नेवर ट्राई टू बी बॉसी। बॉसी मीन्स आप हमेशा बॉस बनने की कोई भी कोशिश न करें। इंस्ट्रक्शंस दें लेकिन इंस्ट्रक्टिव वाला बिहेवियर कभी न अपनाएं, क्योंकि अगर आप नेगेटिवली, अगर आपका बच्चा कोई नेगेटिव काम भी करता है तो उसको उसके कोई गलत काम किया उसको ये बता दीजिए कि आपने जो गलत काम किया उसकी वजह से आप पे कितना असर पड़ा, आपके हेल्थ पे कितना असर पड़ा, आपकी पीर ग्रुप या आपके जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं उन पे कितना बुरा असर पड़ा, आपके माहौल पे कितना असर पड़ा।
उसको थोड़ा रियलाइज खुद कराए, वो बच्चा खुद रियलाइज करे। जब तक बच्चा रियलाइज नहीं करेगा वो कभी सीधे लाइन पे नहीं आएगा। उसको खुद इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा खुद रियलाइज करे कि मैंने गलती की, गलती मैंने कहाँ से मुझसे गलती हुई, गलती के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। लेकिन एक बॉस की तरह नहीं, एज ए फ्रेंड उसकी तरह हमें बिहेव करनी। जितना हमारा अप्रोच अच्छा होगा बच्चा उतना आपके साथ खुल जाएगा। बच्चे को हमेशा ये कहें जब भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई भी प्रॉब्लम, ताकि उससे क्या होगा, अगर आप बच्चे के साथ हो वो उसको ज्यादा फ्रेंड्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि कुछ बच्चे रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, वो जिसके साथ उसका रिलेशनशिप वो उसके ही घर जाके बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उसको वो कंफर्टेबल सा माहौल मिल रहा है। तो एज ए पेरेंट हमें ये जरूरत है कि बॉसी वाला एटीट्यूड चेंज करके एक फ्रेंडली माहौल बनाए घर में। अब हम मेंटल हेल्थ पे आते हैं। मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो हम इम्पोर्टेंट उस पर आते हैं। मेंटल हेल्थ में आपका इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, आपका कॉग्निटिव परसेप्शन, बिहेवियर, ये सारा आपका मेंटल हेल्थ में आता है। क्योंकि डिसिप्लिन पे क्यों आ गई? क्योंकि डिसिप्लिन चीन यानी इज ए पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। डिसिप्लिन चीन इज ए पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। आपका आपके टीचर्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, वो आपका डिसिप्लिन में आता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है आपके टीचर्स के साथ, आपका वे ऑफ टॉकिंग आपके एल्डर्स के साथ कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है, आपके पीर ग्रुप के साथ कैसा है। इट ऑल्सो कम्स इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो जो मेंटल इश्यूज जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें थोड़ा सा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करके मैं ये कर लूँगी, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, बच्चे जो है इस एज ग्रुप में एंजाइटी नाम की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें मेनली बच्चे जो हैं फेस करते हैं इस एज ग्रुप में। जैसे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था, इसके बाद सडनली उसके ग्रेड जो है वो कम शुरू होने हो गए, कम आने शुरू हो गए। फिर इसके बाद बच्चे का बिहेवियर बड़ा अच्छा था, उसका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन में क्या क्या होगा बच्चे को, जैसे ग्रुप में बैठना उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग बैठेगा, उसके ग्रेड्स कंसिस्टेंटली पुअर होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्कूल की अगर हम बात करें, छोटी छोटी चीज़ों में रोना आ जाएगा, वेक सिम्टम्स लेके बैठना, जैसे स्कूल्स कम ही आना, इरेगुलर हो जाना क्लासेस में, कभी गौजर मोचा, कभी कोई ब्राउजर मोच हेवी चातो फुरत या मुस्नियोचा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पर एजिटेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा आ जाना, फ्रेंड्स के साथ बैठ नहीं पाना, ग्रुप अगर होगा वो ग्रुप से अलग हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है साइन ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो अब आपके ग्रुप में भी अगर कोई ऐसा बच्चा होगा, किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होगी, अब आके हमसे शेयर करें, हम काउंसलिंग देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास फ्री मेडिकेशन है, हम फ्री मेडिकेशन या मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे। इवन हम यहाँ पे आपको काउंसलर्स भेज कर स्कूल में काउंसलिंग भी करा देंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक, इसको हम एक डिजीज नहीं मानेंगे, ये स्टेज के बाद आ जाता है। लेकिन उस वक्त हमें टाइमली इस चीज़ को एड्रेस करके, टाइमली उस चीज़ को इंटरवीन करके, टाइमली उस चीज़ को हमने ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस चीज़ों को सपोज किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम अगर होगी, अगर हमने उसको टाइम पे एड्रेस नहीं किया, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसके बाद अगर हम टाइम पे इस चीज़ों को एड्रेस नहीं किया तो बायोपोलरिटी जेंची जर्मियोंची उसमें लैंड अप हो जाता है बच्चा, स्किज़ोफ्रेनिया जेंची उम्र उसमें बच्चा इंडल्ज ये हो जाता है। फिर इसके बाद अगर इस चीज़ों को हमने टाइम एड्रेस नहीं किया, बच्चा फिर ड्रग एडिक्ट्स वगैरह ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है। तो इन चीज़ों को टाइम पे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद मैंने कहा कि एडिक्शन में भी बच्चा जाना स्टार्ट कर देता है। तो एडिक्शन ही नहीं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर बच्चों में आ जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स मीन अनहेल्दी फूड खाना। जैसे आज में से कितने बच्चे जो है पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना या हॉट डॉग खाना पसंद करते हैं? कितने? बहुत कम, पक्का। दैट मीन्स आपका बहुत हेल्दी ये है, लाइफ फ्यूल होगा। कोई नहीं पसंद करती इन चीज़ों को, वैसे भी सही बात, अच्छी बात है। खुला हाँ, मैं एक बैलेंस डाइट खाने की जरूरत है। बैलेंस डाइट है जी उम्र,
बैलेंस डाइट में आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और चमोचा प्रोटीन भी होना चाहिए, इसमें होगा ये जो है आपका, उसमें आपका सब्जियां हो, दालें हो, ठीक है, मीट भी हो, अंडा हो, प्रोटीन हो, एग हो, कैल्शियम, ये सारी चीजें हो। हाँ ठीक। तो अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो कॉजेज पे अगर हम जाएं तो कभी कभी ट्रॉमा, जो चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो, उसकी वजह से बच्चा जो है डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कभी कभी पुअर्टी इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी, ठीक। कोई कोई अपना बहुत क्लोज जो उससे छिन गया हो या दूर चला गया हो या वो एक्सपायर फोर्थ हो चुका हो, एंजाइटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि अभी अगर किसी बच्चे को स्ट्रेस, जो मैंने कहा अभी सिम्टम्स, इसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस भी कहते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम स्ट्रेस हो, तो लॉन्ग टाइम स्ट्रेस को अगर हमने टाइमली एड्रेस नहीं किया तो ये चीजें होगी। अगर ये सारी चीजें होगी तो उससे क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चीजें, अगर स्कूल में आप रेगुलर होंगे, ठीक है, आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा, क्योंकि अगर डिप्रेशन होगा आप में कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, लेक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन ना होने की वजह से क्या होगा, आपको स्टडीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो पूर होता जाता है। तो मैं टेक्निक, जो हमारे मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, अगर हम उसकी बात करें तो एक तो हम अच्छे से आप सोने की कोशिश करें। सोने की मतलब ये नहीं कि आप संगे मांगी तो 6-7 घंटा काफी है सोने के लिए, ठीक है। रात को 10 बजे अगर सोया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक आपको उठना है। इसके बाद एक अच्छा एक्सरसाइज, वॉक जो बचा, एक्सरसाइज बचा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, आपके ओवरऑल इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, या इसके बाद योगा करते हैं या लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमारे योगा में हमारा गाती फ्याक वो इस तरह से योगा, ठीक है। योगा जैसे पता नहीं आप लोग बाबा रामदेव का योगा देखते नहीं थे, वो तो कहता है कि अगर मुस्लिम है, मुस्लिम को तो योगा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे योगा में लांशा, उसमें भी आपके मसल्स और ऑर्गन्स में इतना प्रेशर पड़ता है कि आपका अच्छा खासा योगा हो जाता है, ठीक ठीक। बस फ्याक बचता है इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और हाँ, म्यूजिक सुनना, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, म्यूजिक सुनना, आप काफी रिलैक्स फील करते हैं म्यूजिक सुनना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एयरफोन लगा के हमेशा म्यूजिक सुनते रहें, दिस ऑल्सो नॉट गुड, वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, वो जो आगा साहब अभी काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बारे में कहेंगे, वो काउंसलिंग ही होता है, ठीक। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर, उससे भी जो आपकी जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके बाद प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सिंग, जिसको हम PMSR कहते हैं, PMR, वो हमेशा एक एक्सरसाइज रिलैक्सिंग टेक्निक है। इसके बाद एक हेल्दी डाइट, जैसे आपने कहा आप में से कोई जंक फूड लेते नहीं है तो आपको हेल्दी डाइट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद कॉलेज लेवल पे जब जाएं तो डिस्कस करने की कोशिश करें, अपने आप तक ना रखें। और आपके सोसाइटी में अगर कोई बच्चा ड्रग्स लेता है, लेने वाला कोई बच्चा हो, तो उसको भी आप एज ए फ्रेंड अच्छे से समझाएं कि ड्रग्स अगर लें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके आपके फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके पेरेंट्स पे क्या पड़ता है, आपकी स्कूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके ओवरऑल हेल्थ पे उसके क्या बुरे असरात हैं। क्योंकि ये जो एडिक्शन का, जो ड्रग्स का जो लत जो है, वो जो हमारे बच्चों में भी, मैक्सिमम बच्चों में भी लग चुका है। लेकिन इंशाल्लाह अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, आप अच्छे, आपकी मुझे लगता है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप जैसे फ्रेंड्स उनको मिले तो वो भी उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने कोशिश को यहाँ तक नहीं रखनी है, हमने कोशिश को उस वक्त तक हमने कोशिश नहीं छोड़ना है जब तक हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को एड्रेस करके बाहर ना लाएं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग बोर भी हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। इसके बाद मैं मैम नसीम ज़ारा से जब आप मेंटली हेल्थी होंगे या मेंटली इल होंगे तो आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। होप समझ आया होगा। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, 1-2 घंटे में ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन शॉर्ट में अगर मेंटल हेल्थ को में डेफिनेशन, जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है ना, वो बताएंगे तो इट मीन्स यही है कि
आप सुबह सब उठते हो ना, ठीक है, फिर रात को सोते हो, इन बिटवीन अगर आपके डिसीजन मेकिंग में या आपके जो भी वर्क्स है, ठीक है, आपकी थिंकिंग है, आपकी थॉट्स है, ओवरऑल कंप्लीटली ठीक रहा, तो दैट मीन्स आप क्या हो, मेंटली, ठीक है। मेंटल का मतलब पागल नहीं है, ये भी याद, मेंटल मीन्स दिमाग, ठीक है। उसके बहुत सारे मैडम ने बताया कि डिप्रेशन होगा तो एंजाइटी होगा, तो ये सब डिसऑर्डर्स है मेंटल हेल्थ, ठीक है। ड्रग एडिक्शन के भी बारे में भी मैडम ने आप लोगों को डिटेल्स में बताया, ठीक है। तो मेरा टॉपिक था कि द रोल ऑफ काउंसलिंग इन मेंटल हेल्थ मीन्स काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग एक, फॉर एग्जांपल मैं एक काउंसलर हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये कभी नहीं बताएगा आपको ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन आपको मैं बना के नहीं दूंगा। काउंसलिंग क्या करता है, एक काउंसलर का काम यही होता है, एक साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होंगे उसको ठीक करना है, और आपको इतने एबिलिटी बनाएंगे कि आप अपने डिसीजन जो है अच्छी तरह से ले सके। दिस ऑल अबाउट द काउंसलिंग और द रोल ऑफ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन फेयर आप लोगों का मेन वो था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, ये फेयर चला है। इसलिए इस टॉपिक को टच करते हुए कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बताना है, एजुकेशन फेयर में आप लोगों को पहले भी काउंसलिंग किया होगा कि किस फील्ड में आप 12 के बाद 11 के बाद, ठीक है, या आप किस फील्ड में जाओगे, एबिलिटीज कितना है और किस फील्ड में कैसे जाना है, इस फेयर को दिमाग में रखते हुए मैंने हमारे जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, पता है साइकोलॉजी, सुना था, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बताऊंगा कि साइकोलॉजी में जिनका भी इंटरेस्ट होगा उसमें कैसे करना है, कहाँ उस पे क्या करना है, और कौन कौन सी कॉलेजेस आपको साइकोलॉजी में बीए या एमए का कॉलेज, ठीक है। साइकोलॉजी में एमएससी भी होता है, एमए एक Thank you so much, Dr. Fatima Nisa ma'am, मैम नसीम जहरा और सईद हसन शाह। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे बहुत दूर से इधर तशरीफ लाए और मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग, बहुत सारे जो हमारे सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इनको एड्रेस किया, और साथ में आपने अपने पैकेज में हमें करियर अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी भी यहाँ पे पावर पॉइंट के जरिए से हमारे बच्चों तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टेम्पररी स्ट्रक्चर में गर्मी के बावजूद आपने अपने प्रेजेंटेशन टॉक्स को बड़े इफेक्टिवली यहाँ डिलीवर किया। एंटरप्रेन्योरशिप पे सेशन को कंटिन्यू करें, और हमारे गेस्ट आपके लिए इधर लंच का इंतजाम है, आप लंच को एंटरटेन करके जाइएगा, और डॉक्टर आबिद साहब आपको एस्कॉर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत मेंटल हेल्थ से वास्ट थी, बहुत बड़ा फील्ड है, और आधे घंटे में मेंटल हेल्थ खत्म होने वाली चीज नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले Inshallah, we look forward to have more sessions from you. Thank you. इनका हमें पहले से थोड़ा अंदाजा था कि हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे लिमिटेशंस को देखकर, हमारे रिसोर्स लिमिटेशंस और टाइम के लिमिटेशंस थे। तो इनका सबसे पहले हम स्पेशली और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बेयर किया। तो इंशाल्लाह जाफर साहब एक अच्छे टाइम मैनेजर भी हैं, मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है, एंटरप्रेन्योरशिप से, तो ये वेल इन टाइम बड़े इफेक्टिवली इंशाल्लाह आपको अपने टॉक डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उसको पता होना चाहिए कि मैं रिस्क टेकिंग डिसीजन उसमें होने चाहिए। बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं,
वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर 10 दिन में मैं बोलूंगा ना, मेरे को कब बढ़ जाएगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें, और कैसे आप लोगों के दिमाग में जो मैं बात करूंगा, छोटी सी छोटी भी बात आपके दिमाग में रहे, आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आप सबके लिए, जो मैंने करियर स्टार्ट किया, जैसे मैं सलीम सर मिले, आबिद साहब मिले, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा, हमारे लाइफ में क्या हुआ, वो मच रिलेटेड करेगा। जो मैं कोई और चीज दिखाऊंगा उससे बेहतर है, वो बेहतर रिलेटेड करेगा। सबसे पहले मैं बहुत वेलकम करता हूँ इस एजुकेशन, लद्दाख एजुकेशन फेयर को, जो फर्स्ट टाइम लद्दाख सांगू में हो रहा है। और हमारे सांगू में ही यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ताउन की, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे टीचर्स है, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हमें, हमारे जमाने में या सर साहब जो हमारे डिग्निटरीज के जमाने में क्या होता है, ये सब चीजें होती नहीं थी। तो मैं इन लोगों का भी दाद देता हूँ, उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है, उसके बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो आपका सोचते हैं। ज्यादातर लोग एकेडमिक के बारे में सोचते हैं, अच्छा जी आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कभी भी किसी भी कॉलेज में ये डिस्कस नहीं होता होगा कि आपको बिजनेस कैसे करना है। उसके बाद भी, क्योंकि आजकल के जमाने में जॉब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, बिल्कुल कम है, तो उसके लिए मैडम ने बोला, ये लोग जो साइकोलॉजिस्ट, आपने पहले सुना था कोई साइकोलॉजिस्ट भी होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है, पहले कभी नहीं सुना होगा, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, क्योंकि उस टाइम पे उतना टेंशन होता ही नहीं था लोगों को। हाँ जी, आपने 12th पास किया या जो ग्रेजुएशन किया, आपने अपना जॉब स्टार्ट किया, यही माइंड में रहता होगा। अभी भी लोगों के माइंड में यही है कि ये जॉब ही एक चीज है, तो लोग बिजनेस के बारे में कम बात करते हैं, राइट। तो मुझे कोई भी स्टूडेंट ने बता दिया आपका एम क्या है, कोई एक बता दी, आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो? राइट, हाँ, डॉक्टर। और कोई जो बिजनेस या और कोई प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ? एक डॉक्टर से भी बात कर लेंगे हम लोग, फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर पायलट और फ्यूचर आर्मी ऑफिसर से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये टाइम नोट करके रखना। आपने बात किया इतने लोगों के सामने, तो आपको बनना है, वही बंदा आगे जा सकता है। जो आपने बचपन में डिसीजन ले लिया ना, वही बंदा ही, जो टीचर बनना है या जो भी प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, फाइटर पायलट बनना है, आर्मी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, वही बंदा आगे जा सकता है जो आज से उस कमिटमेंट को लेके चले। और वही एक चीज, एक एंटरप्रेन्योर में वही एक कमिटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। आप आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? देश की सेवा करना। इन्होंने बोला है देश की सेवा करना है, देश के ऊपर मर मिटना है। क्या हम देश से पहले क्या आता है? अपना घर आता है, माँ बाप आता है, बहनें आते हैं। क्या हम उनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है? तैयार है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जब मैं डॉक्टर फातिमा साहिबा की ये लेक्चर ये जो सुन रहा था, वो बोलना हमें क्यों घर का काम करना है? घर, देश तो घर से ही स्टार्ट होता है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने घर में माँ बहनों की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, फादर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी जाके आप अपने एम को परस्यू कर सकते हो, राइट। अभी इस जमाने में पहले क्या होता था, मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा। सबसे पहले जब मेरा 12th हुआ, 12th में मेरा सेंट्रल डिस्को स्कूल में था, तो मैं एक ही लद्दाखी स्टूडेंट था वहाँ पे टीचर ने सीधे बोल दिया आप कहाँ से हो? मैंने बोला सर मैं लद्दाख से हूँ। जाके आगे बैठो, 12th के बाद आप लोग गेजेटेड ऑफिसर बनते हो। ये ह्यूमिलेशन हर जगह चलता था पहले, अभी आप लोगों के साथ ये नहीं होगा। तो सबसे प्लस आप लोगों के यहाँ पे क्या है कि आप अपने घर में, आप अपने टीचर्स के साथ जो आपको समझते हैं, जो आपकी सोच को, जो आपको थिंकिंग, जो आपको मैच करते हैं, वो टीचर्स आपके सामने हैं। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, मेरा आंखों में थोड़ा किरण सा आ गया जब सलीम सर को मैंने वहाँ पे देखा, तब से हमने स्टार्ट किया। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? yes,
थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आप लोगों के पास रिसोर्स ही रिसोर्सेज है, बट देश जितना जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जॉब की कमी होती जा रही है। तो हर कोई इंसान तो हर किसी बंदे को जॉब नहीं मिल सकता, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना छोटा सा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट का बहुत कोई भी स्कीम नहीं हुआ करता था। अभी तो माशाल्लाह लड़कों के लिए तो है ही है, लड़कियों के लिए तो बहुत सारे स्कीम्स है जो आप स्टार्टअप इंडिया को लेके जाइए। कल आपके पास बिंग वाले आ जाएंगे, वो लोग बता देंगे कि आपको बिजनेस करने के लिए लोन फैसिलिटीज, बहुत सारे फैसिलिटीज है। अभी इन्होंने बताया कि एजुकेशन फैसिलिटीज है, एजुकेशन लोन्स है, वो तो तब हमारे ज़माने में हमें पता नहीं चलता था, ये सब चीज़ें भी होती है। तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको माइंड में क्या होना चाहिए, आइडिया क्या होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया। उस आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लोगों के साथ बात करना है, राइट। लोगों के साथ बात अपने हिसाब से, आप अपना जो भी छोटी मोटी आइडियाज अपने पास रखना है। उसके बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे कि ये कैसा चलेगा। आप लोगों को उनको नहीं बताना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आजकल तो बिजनेस आइडिया भी चुराए जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो किसी से लिया हुआ है। क्योंकि हमारे इधर क्या है, हमारे करगिल में मेन चीज क्या होता है कि जो बंदा ठेकेदार बनता है ना, सब ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। आपने देखो, मैं बाहर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आप यहीं के एग्जाम्पल दूंगा। जो बंदा टीचर बनना चाहता है, सब टीचर में ही चले जाएंगे। 10 पोस्ट टीचर के है, 1000 लोगों ने भर लिया, पता नहीं हमको करना क्या है। जो बंदा ड्राइवर बनना चाहता है, सब ड्राइवर में चला गया। अब उसका पता नहीं ना, अपना आइडिया नहीं लगाते हैं ना, लोगों को सोच देख के आइडिया लगाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर में हर चीज में अपना आइडिया होता है, अपना एक इनिशिएटिव होता है कि कैसे मुझे इस चीज को लेके जाना है। तो उसमें सबसे पहले आपका काम, माइंड आपका शार्प होना चाहिए। आप काम से बिल्कुल, आपको 10 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, उसके ऊपर रट्टा लगाना है। लोग आपको बोलेंगे बहुत कुछ, आपको मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी। आपके आजू बाजू अगल वाले सब बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा है। मेहनत तब रंग लाता है जब आपको पेशेंस, आपको हदीस में भी होगा, हदीस सबसे बड़ी हदीस है पेशेंस। हम कुछ नहीं करते, माँ बाप कुछ बोलते जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट करते, बाद में पता चलता है यार मैंने गलत किया। आपको किसी फ्रेंड ने कोई चीज बोल दिया, आप रिएक्ट करते हो। तो सबसे पहले इस चीज में पेशेंस चाहिए, आपको लोगों का सुनना है, लोग क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आपने इनिशिएटिव लिया, आपने लोगों से बात भी किया, सबसे सजेशन लिया, आपके प्रोफेसर से, लेक्चरर से, जो भी बिजनेसमैन है उनसे आइडिया ले लिया, उनसे मशवरा ले लिया, अच्छा इसमें क्या हो सकता है, ये स्कोप क्या हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक प्रॉपर एक जगह को तय करना है जहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं, जरा मुझे बात बताइए। क्या क्या आपके आइडिया दिमाग में आइडिया आ रहा है बिजनेस के रिलेटेड, क्या क्या आइडिया। यहाँ पे कोई मारने वाला नहीं है, आप अपना दिल खोल के बताओ। यहाँ पे आप ये एजुकेशन फेयर इसलिए रखा हुआ कि आप लोग खुल जाए, आप लोग अपनी मतलब वो है ना दिल की भड़ास निकालें। इधर क्लास में तो बाकी टीचर्स के साथ नहीं निकाल सकते, मेरे साथ तो निकाल लो कम से कम। मैं कल परसों आपको पकड़ूंगा नहीं, या मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। भड़ास निकालो, क्या क्या बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में आ रहा है। लोकल पिकल बना सकते हैं। वेरी नाइस, लोकल पिकल बना सकते हैं, वेरी नाइस। और लड़के यार पहले तो मैम को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम घर का काम नहीं करेंगे, बाहर का काम है ये, तो बिजनेस का काम है। क्या कर सकते हो आप लोग, ओके ये तो लोकल हर किसी के माइंड में चल रहा होता है। और कोई चीज यार देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं होता कि कोई डिफरेंट ही आइडिया जाए, आप एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी ने रेस्टोरेंट डाल दिया, आप उसमें देखो, मैंने बहुत सारी चीजें श्रीनगर में भी, लेह में भी, हर जगह देखा। तो क्या होता है कि मैं आप एज एजुकेशनिस्ट आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओगे। हर किसी ने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, देखा है ना, कोचिंग सेंटर्स है, बट कोचिंग सेंटर
हेलो। कोचिंग सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है, बट एक आपने नोटिस किया, अभी मैं बहुत टाइम कश्मीर में देखो बाहर के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आए हुए हैं और अपने लोगों को हायर कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने कोचिंग सेंटर के ब्रांच बना के अपना एक एंटरप्रेन्योर, एक अपना बिजनेस खड़ा करें। ये लेख होते हैं कि एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन, एक आम सोच में ये फर्क होता है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इतने जबरदस्त टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ये चीजें ऑर्गेनाइज किया, अपने लोग हैं, आप शेयर कर सकते हो कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना, जरूरी नहीं आप अपना टाइम इसी के ऊपर इन्वेस्ट करें। एजुकेशन सिर्फ लाइट के लिए होता है, बिहेवियर के लिए, मेंटल, ये सब चीजों के लिए, उनके ऊपर तो सबने लेक्चर दे दिया एजुकेशन किस लिए होता है। तो आपको ये बिजनेस के लिए आपको पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, आप एक अनपढ़ आदमी भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि हम ये उसी सोच तक रहते हैं। किसी ने रेस्टोरेंट खोल दिया, बस एक रेस्टोरेंट खोल दिया, चाय का पानी टपरी डाल दिया। मैं परसों एक दोस्त के रेस्टोरेंट में ले में गया, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं पेश कर रहा हूं। उसने सबसे पहले मीडिया का यूज किया, जो मैंने आपको बोला, आपको एडवर्टाइज करना है अपने बिजनेस को। इस बिजनेस को आगे लाने से पहले आपको एडवर्टाइज करना है। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, हम अपने आप को कितना एडवर्टाइज करते हैं डेली, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, कितना खुश होते हैं, किसी ने लाइक कमेंट किया, कितना खुश होते हैं, है ना। उसी तरह अपने बिजनेस को इस मीडिया की मीडियम के थ्रू प्रमोट करना है। मैं बहुत ये हो गया, उसने प्रमोट करते करते मेरे को मन नहीं था, मैं चला गया। उसने 2 जूस दिया, एप्रिकॉट जूस और एक ब्रेड के ऊपर एक टमाटर था और एक प्याज था और थोड़ा सॉसेज था। तो वो 2 जूस, एप्रिकॉट जूस का, और उसकी कीमत क्या होना चाहिए, कितना होगा? 100 रुपये। 100 रुपये कितना होगा? 200 आपके हिसाब से 150। उसने मुझे 1000 रुपए का बिल दे दिया। वो उसका एटीट्यूड था, उसका कमिटमेंट था। उसने पहले लॉसेस को नहीं देखा, उसने इतने सारे सेटअप किया, इतना सोशल मीडिया में हाइप लगा, 100 से ज्यादा प्रॉफिट कितना है उसमें, कितना % प्रॉफिट है? 90% कहाँ हो गया? 100 रुपए का खर्चा है, 900 रुपए उसने मेरे से कमा लिया, 900% प्रॉफिट। वो तब वो आपका सोच है, आपका आइडियाज, वो उसका आइडिया लेके चलते हैं ना। नहीं तो वो चाहे अपना होटल वाला भी बनाते जो सांगू में है, हर जगह पे अपना थोपा मोमो वाला बहुत जगह पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपना सोच बदलना है। आपको लॉसेस बियर करने का हिम्मत होना चाहिए। पहले तो इस ऐसा स्कीम्स कोई लोन नहीं होता था, अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे लोन लॉन्च किया है। हम एक पीजी से लेके पीएचडी तक कितना हम अपना दिमाग इन्वेस्ट करते हैं, या केस के लिए, आईएएस के लिए कितना पढ़ते हैं। अगर आप उसका 2% बिजनेस के ऊपर माइंड करके उसके ऊपर फोकस करोगे ना, उससे डबल फायदे में होगा। सबसे पहले आप किसी और को जॉब क्रिएशन दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2012 इस चीज में लगा हुआ हूँ, कभी लॉस हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, मगर मैं रुका नहीं। मैंने देखा यार आपका बिजनेस सेटअप कहाँ पे ज्यादा चलेगा। मैं करगिल से हूँ, मैंने पहले थोड़ा श्रीनगर में थोड़ा देखते हैं, कंपटीशन बहुत था। फिर मैंने करगिल में, मेरा इतना स्कोप नहीं था, ले में अपना कर दिया, क्योंकि अभी वहां से ऑपरेट होता है, ले में भी है, करगिल में भी है, श्रीनगर में भी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को आप जॉब दे सकते हो, आपका सोच। और सबसे पहले इन चीजों में सबसे पहले आपको पैसा आएगा। पैसे के साथ साथ आपने जो क्वालिटी टाइम, जो पहले आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, वो बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको शैतान नहीं बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कल परसों ही ले पहुंचा हुआ था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने फोन किया, ऐसा ऐसा है। 5 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे नुब्रा में एक थोड़ा बिजनेस डील था किसी लोगों के साथ में। मैंने सोचा यार पैसे को एक टाइम आ जाता, आपके पास पैसा आना है, उसके बाद आपने किस सोच से इस चीज को आपने आगे बढ़ाया। क्या आपने सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, क्या आपने अपने लोगों से फायदा पहुंचाने के लिए। मैंने सोचा पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, आप लोगों को समझाऊं कि कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो उससे पहले वैल्यू आपके अपनी पर्सनल वैल्यू बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। पैसा तो आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा।
आपको टाइम के साथ साथ टाइम कैसे आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने एजुकेशन के लिए कैसे स्पेंड करने वो देखना है। कि आजकल लोग क्या करते हैं, देखो हर कोई फेसबुक, हर कोई इंस्टा पे है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, 1 साल 2 साल के बाद खुश, राइट। जब आपको पता चलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, कहां से कुछ नहीं है, कोई चीज उसी का बेनिफिट उठाते हैं, वो लगा रहता है उसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक लगा रहता है। मैं शॉर्ट स्टोरी आपको बताऊंगा अंबानी के बारे में। अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी था, वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। आज क्या है वो, जब धीरू भाई, एक तो अभी तो उनके बेटे हैं ना, जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, उसके बाद जो उनके बेटों में वो शेयर्स बढ़ने वाला, तो इंडिया की इकोनॉमी हिल गई। वो क्या करता था, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला काम था, जो अपने कितने पेट्रोल पंप है आप देखा होगा ना, मगर करता क्या था वो देखता था हमेशा उसके सामने एक 5 स्टार होटल था। बोलता यार मैं भी तो वही इंसान हूँ, ये बंदे तो ऑडी में लैंड पता नहीं कितने बड़े बड़े गाड़ियों में आके उधर जाके कॉफी पी के खाना पी के जाते, मेरे को भी हाथ है, वही पैर है, वही आंख है, वही नोस है। तो वो क्या करता था, हर जो भी सैलरी निकालता था वो जाके अपना पूरा महीने का सैलरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ताउन से ये प्रोग्राम पूरे लद्दाख के यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक ही वक्त में ये प्रोग्राम लद्दाख एजुकेशन फेयर ये अहतमाम किया गया है इसका। और इसी के साथ यहाँ सांको कैंपस, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल का कैंपस है, जो इसी साल यहाँ पे शुरू हुआ है, हमने भी कोशिश किया कि इस फेयर को यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अहतमाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 काफ़ी कामयाब रहा। इस डे 1 पे हमने कुछ इंटरैक्टिव सेशंस और एक्सपर्ट टॉक्स रखे थे, जिसमें मेंटल हेल्थ इन पोस्ट कोविड सिनेरियो, इस पर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और साथ में हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पे लोकल एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को हमने बुलाया था। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह यहाँ पे अपने टॉक्स के साथ बच्चों को बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ की अहमियत के बारे में बताया। साथ में हमारे यहाँ डिफेंस से डिफरेंट जॉब एवनीज इन डिफेंस और आर्मी के अंदर जो भी जॉब एवनीज है, इस पर हमने टॉक्स के लिए आर्मी से कैप्टन कृतिका शर्मा को बुलाया था। उन्होंने भी पावर पॉइंट के जरिए से बच्चों को बहुत अच्छी तरह एक इंटरैक्टिव सेशन यहाँ पे डिलीवर किया। और यहाँ पर आज के इस डे 1 पे हमारे सांको कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल काउंसिलर सईद अहमद रिजवी साहब यहाँ चीफ गेस्ट थे। उन्होंने भी यहाँ पे इस एजुकेशन फेयर के अहमियत और अफादियत के बारे में अपने ख्यालात से नवाजा। तो ओवरऑल यहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ये प्रोग्राम डे 1 पे कामयाब रहा। कल के जो कंक्लूडिंग डे पे हमने यहाँ पे स्टॉल्स रखे हैं, जिसमें हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्किल्स को एग्जिबिट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में स्कॉलरशिप स्कीम्स और बैंक लोन स्कीम्स पर भी यहाँ पे स्टॉल होंगे, जिससे बच्चे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और स्टॉल पे मौजूद एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी उनके क्वेरीज हैं उनको वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये एजुकेशन फेयर इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगे। हम GDC कारगिल की तरफ से सारे लोगों का शुक्रिया अदा